told so far. But planets have man-made satellites also. They are meant for special purposes. And today we have to specially talk upon that. Okay? So everybody write down artificial satellites. You can also call these artificial moons. Have you written all? Everybody, have you written this heading? What I am observing, few students are roaming in the classroom. That's not a good sign, bache. Please settle down as quickly as possible. Very nice. But first of all, I am asking you as well as writing. Can anybody tell me what is the name of the satellite which has been set in the orbit by India? Can anybody tell what is the name of satellite set in the year 1975? Shabash. Few of the students know, I believe that you know. Let me write it. Everybody will write down Aryabhatta. Aryabhatta is the scientific satellite. Can anybody tell what was its purpose? इसका purpose क्या था? Why Indian government has set this satellite? All our satellites are launched into the orbit from the city Bangalore. There is a popular institute, scientific research institute in Bharat by the name Indian Institute of Science. In the Indian Institute of Science, there is a launching pad of the rocket. Rocket goes up, it is propelled. Along with it, it carries the satellite, and this rocket launches the satellite in its orbit. The satellite starts revolving around the Earth, keep on revolving, and it is set in the orbit for some special purpose. I will keep on telling you the names of satellites as well as their purpose. First, write down. It was focused on scientific experiments. Scientific experiments. Everybody will write down, please. Aryabhatta was settled for what purpose? For what purpose? Scientific experiments. Have you written it? Shabash. Can anybody tell me what is the speciality of this satellite? It is the first satellite by Bharat, first satellite by India, by our country. Okay? This is another feature. So if somebody asks you about Aryabhatta, you have to tell three things. Number one, it was launched in 1975 year. It is the first satellite by India, and its purpose is scientific experiments. Right? Let's move to the next satellite. Next satellite. Can anybody tell me what was the name of next satellite launched in 1979 after 4 years? Can anybody tell me the name of this? Raise your hand. Shabash. Few of the students in Shaurya Chakra are raising hands. And let me tell you, Padma Shri, they are also raising.
few students in the PZ section. Okay, so I believe that you know. Let me write its name. This is your Bhaskara. Bhaskara. Name of the satellite is Bhaskara. Okay, and it is called as Bhaskara first. Bhaskara first, because by the same name we launched another satellite 2 years later. 2 years later, 1981, we launched Bhaskara second. Shabash, Bhaskara second. Can anybody tell me the purpose of these two satellites? What is the purpose of these two satellites? Anybody? ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट में क्यों लॉन्च करी गई थी? कोई नहीं बता रहा, एक बच्चा बता रहा है सिर्फ शौर्य चक्कर में। अब एक बच्चा ऑस्कर में भी बता रहा है। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर टेलिंग। ओके बेटे, तो मैं आपको बता दूं, शाबाश, लेट मी राइट डाउन। द पर्पस ऑफ दीज 2 सैटेलाइट्स वाज रिमोट सेंसिंग फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस। दूर से ही अर्थ के ऊपर होने वाली गतिविधियां देखना। रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशंस। अर्थ ऑब्जर्वेशंस, धरती पर होने वाली, जमीन पे होने वाली क्या क्या गतिविधियां हैं, उनको दूर से देखकर पता लगाना। ओके, पहले नंबर पे टीचर ये बताया। सेकंड लर्निंग पॉइंट इज दिस। लेट्स प्रोसीड फर्दर बच्चे। अब हमारे पास एक सैटेलाइट हमने डाली। शाबाश, योर अटेंशन। लर्निंग पॉइंट 3। लर्निंग पॉइंट 3, कौन बच्चा मेरे को बताएगा? 1980 टू 1983, 1980 टू 1983। वेरी गुड। एक बच्चा बता रहा है पद्मश्री में लास्ट में। वेरी गुड बेटे, शाबाश देता हूं, मैं मानता हूं आपको आता है। कौन सी सैटेलाइट थी इसमें? एक बच्चा। ऑस्कर में 2 बच्चे। वेरी गुड। ऑस्कर में 2, पद्मश्री में 2, शौर्य चक्र में 2, और पीजेड में 10। पीजेड में 10 बच्चे, और पद्मश्री में 2 स्टूडेंट्स, परम चक्र में कोई नहीं है। ओके, सो लेट मी टेल यू बेटे, इसका नाम है रोहिणी सीरीज। रोहिणी सीरीज, ठीक है। ये सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी थी। ओके, उसके बाद लर्निंग पॉइंट 4। लर्निंग पॉइंट 4 बेटे, लेट्स चेंज द कलर। उसके बाद कौन बच्चा मेरे को बताएगा 1990 में, 1990 में विच ऑफ द सैटेलाइट्स बी सेट इन द ऑर्बिट? क्या बात है, पद्म भूषण। मोर देन 10 स्टूडेंट्स। ऑस्कर, ऑस्कर 3 स्टूडेंट्स। मैक्सेस से, मैक्सेस से 15 स्टूडेंट्स। क्या बात है। ओ पद्म भूषण फुल क्लास, फुल क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी राइट इट, लेट मी राइट बेटे। इनका नाम है IRS-1A। दिस वाज लॉन्च्ड इन 1988। ठीक है। फिर है उसके बाद इनसेट, इनसेट सीरीज। इनसेट सीरीज हमारे देश ने 1980 से लेकर 1990 तक छोड़ते रहे। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट है उसका पर्पस क्या था? IRS का रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग,
कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आता सर रिमोट सेंसिंग का क्या मीनिंग है. Suppose our satellite is doing the remote sensing purpose. The purpose is we have to check the preparation levels of the army of the enemy countries, neighboring countries. चाइना की कितनी प्रेपरेशन चल रही है, क्या हमारी उसके कंपेटिबल है या नहीं. We have to judge the forest level, how much green area is in our country. We have to count the number of tigers, national animal, how many tigers are there. Okay, we have to see the climate so that we can inform our farmers that after 2 days there will be heavy downpour. So to protect your crops, you should harvest your crops in order to save them from the showers. रेल से हमारी फसलें खराब ना हो जाएं, हम किसानों को फसल मौसम के बारे में पहले ही जानकारी दे सकते हैं. कैसे? ये सैटेलाइट्स हमारी मदद करते हैं. ओके, तो सुन लीजिए इसका नाम. ये जो इनसेट 1A सीरीज है, इसका क्या काम है? ये बेटे कम्युनिकेशन के लिए है. मोबाइल कम्युनिकेशंस जो होती है ना, सैटेलाइट फोन्स होते हैं, सैटेलाइट फोन उस पर्पस में है. ब्रॉडकास्टिंग, टीवी प्रोग्राम्स, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो टीवी प्रोग्राम्स. कई बार हम अपने फोन रेडियो पे देखते हैं, फॉरेन कंट्री के प्रोग्राम्स आ सकते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें हम इनसेट के जरिए लेते हैं. उसके बाद ये जो इनसेट सीरीज के बाद हमने फिर सैटेलाइट लॉन्च करा बेटे. लेट्स मूव फर्दर. लर्निंग पॉइंट 5, शाबाश. लर्निंग पॉइंट 5 में हम लिखते हैं इनसेट 2A. आई एन इनसेट 2A. कौन से ईयर में? 1992. ओके, फिर एक और लॉन्च करा हमने 1999 में. व्हाट वाज द नेम? इनसेट 2E. इनसेट 2E. ये दो सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी. ओके, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? उसके बाद भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी. लेट मी टेल यू अबाउट दोस. लर्निंग पॉइंट 6. लर्निंग पॉइंट 6. लर्निंग पॉइंट 6 में टीचर बेटे बता रहा आपको, हमने 202 में एडवांस्ड सैटेलाइट छोड़ दिया था जिसका नाम था कल्पना 1. कल्पना 1 वेरी एडवांस्ड सैटेलाइट. ओके, ये पर्टिकुलरली मौसम को जानने के लिए था. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर मेट्रियोलॉजिकल पर्पसेस. मेट्रियोलॉजिकल पर्पसेस बेटे, पर्टिकुलरली मौसम के बारे में जानकारी. क्लाउड, ओशन, मेट्रियोलॉजिकल पर्पसेस. ओके, ये सभी बच्चों ने याद रखना है. उसके बाद 204 में आ जाओ. कौन से में बेटे? 204, 2004 सॉरी 2004 में हमने एक एजुकेशन के पर्पस के लिए हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम था एजुसेट. एजुसेट, ठीक है. ये एजुसेट हमारे, ये क्या था, हमारे कॉलेजेस में जैसे आईआईटी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर लेक्चर्स लेते हैं. तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को भी आईआईटी के लेक्चर्स दिखें. तो उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके सैटेलाइट से हम टेलीविजन के ऊपर टेक्निकल चैलेंज लेक्चर्स देते हैं ताकि सीनियर क्लासेस में बच्चों का बेनिफिट हो. तभी इसका नाम क्या, देखो, एजुकेशन प्लस सैटेलाइट. इसका नाम क्या है? एजुसेट. तो इसका पर्पस क्या है? फॉर एजुकेशनल लेक्चर्स, ताकि हर घर में एजुकेशनल लेक्चर्स पहुंच सकें. लर्निंग पॉइंट 7 था ये.
ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। लर्निंग पॉइंट 8, लर्निंग पॉइंट 8 बेटे, 204 के बाद हमने 205 में एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम था कार्टोसेट। कार्टोसेट इन कौन से ईयर में? 2005, 2005 में। क्या आप नोट कर रहे हो? आपको इतनी डिटेल कहीं से नहीं मिलेगी बेटे, जो मैं बता रहा हूं समझदार बच्चा सारा नोट करेगा। कार्टोसेट, इसका क्या पर्पस था? ये ऊपर आसमान से जमीन के अलग अलग इलाकों की बहुत क्लियर फोटो खींचता है, बहुत ही क्लियर फोटो। यानी आपके स्कूल के ग्राउंड की फोटो भी खींच सकता है ये। कौन सा बच्चा खेल रहा है ये भी बता सकता है। कौन? कार्टोसेट। तो इसका पर्पस क्या बेटे? हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। हाई रेजोल्यूशन, और किस पर्पस के लिए? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। ओके, 2005 तक आए अभी हम। हमने और भी लिखने हैं, शाबाश। आर यू नोटिंग डाउन? मैं देख रहा हूं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको पता है कि हमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो इनको नोट कर रहे हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। मैं देख रहा हूँ शौर्य चक्कर के बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, नोबल के बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, मैक्सेसे के नहीं लिख रहे, मैक्सेसे के बच्चे नहीं नोट कर रहे। परमवीर चक्कर के बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं, पद्मश्री के बच्चे बहुत अच्छे नोट कर रहे हैं, पद्म भूषण के बच्चे तो बिल्कुल साइलेंटली ईच एंड एवरी पॉइंट लिख रहे हैं। वेरी गुड। मान लीजिए मैंने इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो आपको आना चाहिए। अभी हम लर्निंग पॉइंट 8 तक पहुंचे हैं, आगे भी बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसको हम मेमोरी में डाल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कंटिन्यूड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कंटिन्यूड बेटे। ये कंटिन्यूड है। लर्निंग पॉइंट 8 कंप्लीट हो चुके हैं बेटे। उसके बाद हमारे पास 2010 में लर्निंग पॉइंट 9, लर्निंग पॉइंट 9 बच्चे 2010 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करा बच्चे? उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। बेसिकली हमने इसको, अगर मैं सच में बताऊं तो 208 में कोशिश करी थी, 208 में, ठीक है। इसको 208 ही कर दो जो। नाइन्थ लर्निंग पॉइंट 208 ईयर के अंदर हमने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करा बेटे? चंद्रयान। चंद्रयान से आपको पता ही है इसका मिशन था ल्यूनर मिशन। ल्यूनर मिशन माने वो चांद के सरफेस पर जाएगा, वहां पर चांद के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आएगा, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट। तो इसका मीनिंग फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ल्यूनर मिशन। ल्यूनर वर्ड जब भी लग जाए इसका मतलब होता है मून रिलेटेड, मून रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग पॉइंट 10 बेटे, लर्निंग पॉइंट 10 में हमको जाना है। लर्निंग पॉइंट 10 में कौन से ईयर में पहुंच गए हम? 2013, 2013 बेटे। इस ईयर में हमने एक छोड़ा, इसका नाम था मंगलयान।
मंगलयान। कोई बच्चा बता सकता है मंगलयान, मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? शाबाश। मैक्सेसे के बच्चे माइक पर आके बताएंगे। मैक्सेसे के बच्चे, मैक्सेसे के बच्चे माइक पर आके बताएं मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाबाश। मार्स। मार्स बोलते हैं, बिल्कुल सही, मार्स। तो ये जो प्लेनेट था, ये हमने इसलिए भेजा ताकि ये हमें मंगल ग्रह के बारे में नॉलेज दे, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स प्लेनेट, मार्स प्लेनेट। ठीक है बेटे। लर्निंग पॉइंट 11, लर्निंग पॉइंट 11 बेटे। शाबाश, सभी बच्चे देखेंगे। 11th लर्निंग पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं बेटे 2015 पे। 2015 में हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करा, उसका नाम था एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट। इसका पर्पस ये था, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं, उनके बारे में स्टडी करता है बेटे। फ्रीक्वेंसीज, वेव्स, ठीक है। इसका क्या स्टडी होता है? फॉर मल्टी, मल्टी वेवलेंथ सर्वे। जितनी भी तरह की वेव्स आसमान में घूमती हैं, उन सारों के बारे में नॉलेज देगा ये एस्ट्रोसैट। ओके। लर्निंग पॉइंट 12 बेटे, लर्निंग पॉइंट 12। इसके बाद हमने 2018 में, 2018 में एक सैटेलाइट लॉन्च करा। सभी बच्चे इसका नाम लिख लो, जी सैट सेकंड, जी सैट सेकंड, ये इसका नाम है बेटे। ये बहुत ही हैवी सैटेलाइट था, मल्टीपर्पज था, इसके काफी सारे काम थे, बहुत ही एडवांस मशीनरी इसमें हमने लगाई थी। और जितनी भी सैटेलाइट्स हमने छोड़ी, उनमें से ये सबसे भारी भी था, हैवीएस्ट सैटेलाइट, मल्टीपर्पज। ओके। लर्निंग पॉइंट 13, लर्निंग पॉइंट 13 बेटे। 13 में हमने क्या करा? हमने एक और सैटेलाइट लॉन्च करा, जिसका नाम था RISAT। ठीक है। इसका क्या काम था? इसका काम था मौसम के बारे में बारीक जानकारी देना। 2018 में ही क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट सर्वे, यू कैन से क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट सर्वे, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर, इस पर्पस के लिए हमने नोट करा। फिर उसके बाद आगे हमारा कंट्री ने और एडवांस करा। तब हमने चले गए 2020 में, लर्निंग पॉइंट 14। कौन से ईयर में? 2020। कौन सा सैटेलाइट हमने लॉन्च करा? EOS, EOS 01, EOS 01। एक और लॉन्च करा हमने EOS 03। देखो, 01 और 03 लिखना है, 02 नहीं लिखना, उसमें हमारी गड़बड़ हो गई थी, अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो ये क्या करते हैं बेटे? ओके, ये हमारे सीरीज हैं, ये अर्थ की स्टडी करते हैं, फॉर डीप स्टडी ऑफ अर्थ, डीप स्टडी ऑफ अर्थ, राइट। लर्निंग पॉइंट 15, लर्निंग पॉइंट 15 बच्चे। अब हम कौन से ईयर में पहुंच गए?
तो 2023 यहां पर हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम था आदित्य L1। आदित्य L1। आदित्य L1 का जो पर्पस था, ये सन के बारे में स्टडी करेगा। ये पहला सैटेलाइट हमने ऐसा लॉन्च करा जो सूरज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या काम है बेटे? फॉर सोलर मिशन। देखो ये वाला ल्यूनर है, चंद्रयान। और ये कौन सा है बेटे? फॉर सोलर। सोलर यानी सन, सन के बारे में इंफॉर्मेशन। सोलर मिशन। सन का टेम्परेचर कम कितना होता है, ज्यादा कितना हो सकता है, सन के द्वारा हमें कौन कौन सी रेडिएशंस मिल रही हैं, क्या क्या फायदा है। ये है ल्यूनर। ये मून वाला है बेटे। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला कौन सा है? मून वाला। और ये कौन सा है बेटा? सन वाला। राइट, देखो टीचर ने सन बना दिया। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लर्निंग पॉइंट 16। लर्निंग पॉइंट 16 2025। देख लो कौन से साल में पहुंच गए। 2025। कौन बच्चा बताएगा 2025 में हमने लेटेस्ट कौन सा सैटेलाइट छोड़ा? एनीबॉडी? एक ही बच्चा बता रहा है बस। ऑस्कर, ऑस्कर में ओनली वन स्टूडेंट। शौर्य चक्कर में भी एक बच्चा बता रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है बेटे। इसका नाम याद करो, निसार। थोड़ा हमने, ठीक है। ये एक ऐसा सैटेलाइट था, जब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है साइंस की, उसने देखा कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसने हमारे साथ कोलैबोरेशन करी। ये सैटेलाइट हमने नासा के साथ कोलैबोरेट करके, भारत और अमेरिका का इकट्ठा सैटेलाइट है ये। ओके, इन कोलैबोरेशन विद नासा। नासा कोलैबोरेशन के साथ हमने करा है कोलैबोरेशन। इसका काम भी क्या है? डीप स्टडी अबाउट अर्थ। डीप स्टडी अबाउट अर्थ। राइट बेटे? इसके बिना हमने थोड़ी बहुत और भी सैटेलाइट्स छोड़ी है। हमारी कंट्री में कौन सैटेलाइट्स को ऑब्जर्वेशन करता है? इन भारत। इन भारत। कौन इसकी सुपरविजन करता है, कौन लॉन्च करता है? सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, कोई बता सकता है? जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, ऐसे ही हमारे देश में साइंटिफिक चीजों को कवर करने के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इसरो। इसरो। बेंगलोर में इसका ऑफिस है, बेंगलोर में। तो सभी बच्चे देख लो, शाबाश। इंटेलिजेंट बच्चे ने इसको याद भी कर लिया होगा। अगर इसको भी मैं मेमोरी में डालूं और आपको दोनों बोर्ड्स दिखाऊं, देखो बेटे, एक हमने ये पढ़ा था पहले। सो नंबर 1, नंबर 1 सभी बच्चों को लर्निंग पॉइंट 8 तक याद होना चाहिए। नंबर 2, ये देखो फिर ये वाला। दोनों मिलाकर आपको, जब आप ये लेक्चर सारा रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यूट्यूब पर जाना है, बार बार देखना है इस लेक्चर को, फिर आप याद कर पाओ। फिर से देखो एक बार। एक ये वाला था और एक ये वाला। एक में ये देखो येलो कलर से बॉक्स बना है और एक में बना है ग्रीन कलर से। कंटिन्यूटी में है ये आर्टिकल। ठीक है, शाबाश। अब हम बात करेंगे, मैं अपने बच्चों को स्टार्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। स्टार्स के बारे में जितना टाइम बचा है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। स्टार्स, खास खास बात बताऊंगा, और जरूरी नहीं है मैं सारी बातें बताऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही इंफॉर्मेशन मिले
जो मेरे को लगता है कि आपको नहीं पता होगी। ओके, जो मेरे को लगता है आपको नहीं पता होगी। देखते हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं हमारे लिए नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सभी बच्चे बोलेंगे नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, उसका नाम है बेटे सन। सन इज ए स्टार। स्टार जो होता है सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इनटू इट, एक उसको बोलना है आपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसके अंदर सन की एनर्जी का कारण है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम गैस में कन्वर्ट होती है। कौन सी में? हीलियम। और साथ ही साथ ह्यूज एनर्जी पैदा होती है, ह्यूज एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है इसमें मेनली हीट होती है और लाइट होती है, दो चीजें। गॉट इट? कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि अगर, अब इस क्वेश्चन में कंपटीशन है सारी क्लासों का, ये जो मैं पूछने लगा हूं इसमें आपका कंपटीशन है। अगर मैं यहां पर लिख दूं सन रेडियस और यहां पर लिख दूं अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस, और फिर यहां पर मैं इक्वल का साइन भी बना दूं, फिर मैं अपने बच्चे से पूछूं मेरे को बताओ कि येलो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना चाहिए कि ये बराबर आ जाए। येलो ब्रैकेट में ऐसा क्या लिखूं कि अर्थ को रेडियस को उससे मल्टीप्लाई करके सन का रेडियस बन जाए। है कोई बच्चा जो बता सके? एनीबॉडी हु कैन टेल? ओनली वन स्टूडेंट इज रेडी टू टेल इन द मैक्स क्लास। ऑस्कर स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स, आ जाओ बेटे, ऑस्कर वाले बच्चे बताएंगे। प्लीज कम ऑन द माइक, बताओ बेटे। ऑस्कर स्टूडेंट स्विच ऑन द माइक। मैक्स से आप भी बता सकते हो माइक पर आकर। कितना आना चाहिए नहीं बता रहे बच्चे। ऑस्कर 100. कितना बेटे? 100. नो, 100 इज रॉन्ग। एनीबॉडी इन द स्कूल? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पूरे स्कूल में कोई बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा। हाँ, एक बच्चा पद्म श्री में, आ जाओ बेटे माइक पर। पद्म श्री स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स आर रेडी। आ जाओ माइक पर आ जाओ पद्म श्री के बच्चे। ऑस्कर 14. कितना? 14. ना, 14 रॉन्ग बेटे। 16. 16 भी रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। नो बॉडी इज टेलिंग। 20 इज रॉन्ग। सभी बच्चे पद्म श्री रॉन्ग। नहीं बच्चे, आप नहीं बता रहे। इसका आंसर नोट करो सभी बच्चे। दिस फिगर शुड बी 109। एवरीबॉडी नोट डाउन 109। अर्थ के रेडियस को अगर 109 से मल्टीप्लाई कर दें तो सन का रेडियस बन जाता है। गॉट इट? और कोई बच्चा मेरे को यह भी बताएं, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है सन, उसके उसके बिल्कुल डीप में चले जाए। डीप में बेटे, बिल्कुल डीप, डीप इनसाइड, डीप इनसाइड सन, हाउ मच इज द टेम्परेचर? डीप इनसाइड सन कितना टेम्परेचर है? कोई बच्चा बताएगा? एनीबॉडी हु कैन टेल? कोई नहीं बता रहा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ये 15 इंटू 10⁻⁶ सेंटीग्रेड। डीप लिखना हो ना, डीप। लेकिन अगर सन के सरफेस का टेम्परेचर पूछ ले, सन सरफेस,
टेम्परेचर वो कम होता है बेटे, सन सरफेस टेम्परेचर, तब आपने लिख देना है 6000। ओके, कौन बच्चा मेरे को बताएगा सन के डायामीटर की वैल्यू, सन के डायामीटर की वैल्यू, एनीबॉडी? 1392 इंटू 10⁻6 किलोमीटर सन का डायामीटर, ये सन है बच्चे, और इसका डायामीटर, इसको डी बोलते हैं, डायामीटर की वैल्यू। जो चीज नहीं पता नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे? आपको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ एक क्लास के बच्चे नहीं पढ़ रहे, और मैक्सेसे के बच्चे शरारत कर रहे हैं, कॉपी बांट रहे हैं क्लास में। प्रिंसिपल मैम प्लीज नोट करें कि बच्चा लेक्चर को छोड़ के कॉपी बांट रहा है मैक्सेसे में। ओके, उसके बाद हमारे पास और क्या बात हो सकती है बेटे? शाबाश। कोई बच्चा अगर मेरे से पूछे अल्फा सेंचुरी, ये अल्फा सेंचुरी सेकंड नियरेस्ट स्टार है, और ये हो गया अर्थ, दोनों के बीच में अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे गैप कितना है, डी डैश, तो डी डैश गैप बिटवीन अल्फा सेंचुरी दैट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो इसकी वैल्यू बेटे, 4000 बिलियन, बिलियन किलोमीटर। कोई बच्चा बताएगा 1 बिलियन की वैल्यू कितनी होती है? एनीबॉडी? 1 बिलियन, 10 रेज टू पावर व्हाट? नोबडी इज टेलिंग। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, 1 बिलियन का भी आपको पता होना चाहिए बेटे, 10⁻9। ओके, AR stands for अल्फा सेंचुरी। ओके, अगर आप AR की बजाय AC लिखना चाहो तो भी ठीक है, AC लिख लो। तो अल्फा सेंचुरी और ये अर्थ, दोनों के सेंटर्स के बीच में गैप, ये जो गैप होता है सरफेस टू सरफेस नहीं होता, सेंटर टू सेंटर होता है हमेशा। राइट बेटे? और एक बात, कौन बच्चा हमारी क्लास में बताएगा व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? शाबाश। हाँ, शौर्य चक्कर, प्लीज कम ऑन द माइक। शौर्य चक्कर, शाबाश। टेल मी, डिफाइन लाइट ईयर। The distance covered by light in 1 year. शाबाश, वेरी गुड। ये इतना मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास टॉर्च है, उस टॉर्च को मैंने ऑन करा तो उससे लाइट निकली, इस लाइट को कितनी देर जाने देना है मैंने? पूरे का पूरा 1 ईयर, 1 ईयर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और सभी बच्चों ने याद रखना है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये क्यों यूज करते हैं? हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, जो मून है, जो सन है, जो गैलेक्सी है, उनको मापने के लिए छोटे वाला मीटर यूनिट नहीं चलता। वी हैव टू सिलेक्ट द लार्जर यूनिट, और वो लार्जर यूनिट यूज्ड टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, उस यूनिट का नाम है लाइट ईयर। ओके बेटे, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। एक बार एक क्वेश्चन आया था, योर अटेंशन, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी से अगर लाइट चले और अर्थ तक पहुंचे, ऐसे लाइट पहुंचती है अल्फा सेंचुरी से, तो कितने लाइट ईयर लग जाएंगे? 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, 4 लाइट ईयर, 5 लाइट, वगैरह वगैरह। तो अल्फा सेंचुरी से लाइट चल के अर्थ के ऊपर पहुंचती है, तो ये डिस्टेंस होता है 4.2 लाइट ईयर्स।
4.2 लाइट ईयर्स। सभी बच्चे नोट कर लें, अल्फा सेंचुरी से अर्थ तक पहुंचने की जो लाइट है वो लगती है 4.2 लाइट ईयर्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये हम इसको देखो कितने सारे स्टार के बारे में पॉइंट बताए, इसको मेमोरी में डालते हैं। स्टार्स के बारे में और बातें भी बतानी है। शाबाश, बी रेडी। स्टार्स के बारे में क्या बतानी है, स्टार्स के बारे में बात। देखो बेटे, आपको पता होना चाहिए, अर्थ एक स्टार ऐसा है जो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस के बिल्कुल फेस टू फेस यहां पर होता है, बिल्कुल फेस टू फेस। इस स्टार का नाम होता है, अगर ये अर्थ है उसकी एक्सिस की, पोल स्टार, पोल स्टार। ठीक है, ओके। अभी तक हमने कितनी कॉन्सेंट्रेशंस देख ली हैं, कॉन्सेंट्रेशंस का नंबर कौन बच्चा बताएगा, अभी तक हमने कितने कॉन्सेंट्रेशन नंबर्स स्टडी कर लिए हैं, उसका नंबर क्या है। इसका नंबर है बेटे 88, 88। लेकिन इसमें कुछ ही प्रोमिनेंट है, कुछ ही प्रोमिनेंट है, कुछ ही प्रोमिनेंट, राइट। शाबाश। अच्छा, अगर आपको कोई बोलता है कि कोई स्टार है जो जिसको आप जायंट स्टार बोलते हो, जायंट स्टार, जायंट स्टार का जब साइज के बारे में बात है, जायंट स्टार का साइज जो होता है दैट इज व्हाट, उसका साइज होता है बेटे 8 to 100 टाइम्स, 8 to 100 times the size of sun, 8 to 100 times the size of sun। सूरज के साइज से 8 से 100 गुना ज्यादा। जब भी कभी गोल चीज का साइज के बारे में टीचर बात करता है, गोल चीज, तो उसके डायामीटर को साइज बोलते हैं। डायामीटर का मतलब होता है साइज। ओके बेटे, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अगर कोई बच्चा पूछे कि किसी स्टार का मिनिमम साइज कितना हो सकता है, मिनिमम साइज, तो मिनिमम साइज ऑफ ए स्टार, लास्ट वाली बात करने लगे हैं। मिनिमम साइज ऑफ ए स्टार 1/450 इंटू साइज ऑफ सन। सन के साइज से 150, 450 गुना कम सबसे छोटा स्टार होता है। ओके, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, ये भी आपको लोड करनी चाहिए। सभी बच्चे आज यूट्यूब पर जाके, आज का लेक्चर मुश्किल था, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। लेट्स वाइंड अप, बाय बाय, बाय बाय, छुट्टी करते हैं बेटे, चलो शाबाश। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।